Class 8 column method to find a square of a given number. It means any number. First we see that we want the square of a number which is 13. Means we know if we multiply directly, then it is 13 into 13 is 169. Now in column method what we do, first one column, see this is one column, second column, this is third column. In first column we will write a square, second column 2ab, and third b square. Here a means first digits, that is 1, b means second digit which is 3. So a square means a is here 1 and a square will be square of 1 is 1. Then now we take 2ab, so 2 and a is 1, b is 3. It means 2 ones are 2 and into 3, 2 3 is 6, it is 6. Now b square, b here is 3, so square of b means 3 is 3 3 is 9, so we have put here 9. In rough figure we are again seeing that, see a was 1, b value of b was 3, 2ab will be like this, 2, a is 1, 2 into 1, and b is 3, 3. Means 2 ones are 2 and 2 3s are 6. So here it comes 2ab equals to 6. See, now what will you do? Last digit, which is ones place, we underline it. See, we underline this. Here also in this column we underline 6, and here also 1 underline. So our final answer is, what we underline? 1. Here we put 1. 6, we put 6. 9, we put 9. Means our answer is 169, which was also correct if we directly multiply, which is 13 into 13 is 169. Now we will take another example for this column method. We are taking 29. We want the square of 29. If we directly multiply with the help of calculator, then also result is 841. Now again using column method, what we do, we will take 3 columns, 1, 2 and 3. In first column we write a square, second 2ab, and third column is b square. Here a is the first digit which is 2, and b is the second which is 9. So a square means square of 2, 2 2s are 4. Then 2ab, 2 is 2, then b is 9. When we multiply we get 36. Same b square, b is 9, 9 because 9 square is 9 is 81. Again we will see in rough work how 2ab is coming. 2ab, here a is 2, b is 9. So in place of 2 we write 2, in place of a we write 2 again, and value of b is 9. So 2 2s are 4, 4 9s are 36. So how we get the 36? Now see the main parts comes, we get 4, 36 and 81. Again we will underline the last digit. It means each column the ones place digit is we underline. So here we underline 1. Once the 1 is we underline, the remaining 8, it will be given as carry to the other column. The 8 will be comes here. So 36 plus it is 44. Here we will underline the last digit, or we can say that we will underline only the ones place digit which is 4. And next tens place we will again carry forward to the other left hand side column. So 4 plus 4 it is 8. Again here only ones digit is there, so we will underline. So our final answer is only the underline from left hand side. See, 8 is underline, 8 we have put here, 4 we put here 4, and 1 we put here 1. So our answer is 841, which was, if we have calculated, this answer is same what we have calculated with the help of calculator, which is 29 into 20 is 841. अब हम इसी चीज़ को जो अभी इंग्लिश में समझाया हिंदी में देखेंगे. मान लीजिए हमको 13 का स्क्वायर निकालना है. जो हम कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करते हैं तो
169 आता है। अब इसको हम कॉलम मेथड से कैसे करेंगे, इसको देखिए आप। हम एक कॉलम ये वाली ए स्क्वायर बोलेंगे, दूसरी को 2ab बोलेंगे, और थर्ड वाले कॉलम को बी स्क्वायर। हमारे पास 3 कॉलम हो गई। अब ए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, हमारा फर्स्ट डिजिट है जो कि 1 है। बी क्या है, सेकंड डिजिट जो कि 3 है। तो ए स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1। 2ab, तो 2 कितना है, 2 तो 2 रहेगा। ए कितना है, 1, तो 2 इंटू 1, और बी कितना है, 3, तो करा कितना, 2 1 ज़ा 2, तो 2 3 ज़ा 6, हमारा 6 आ गया। बी कितना हमारा यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो हमने 9 कर दिया। अब इसको थोड़ा रफ में देखते हैं 2ab कैसे आया। ये देखिए हमारा ए कितना था, 1, बी 3 था, तो 2ab क्या आएगा, 2 के बदले 2, और ए के बदले क्या हमारा 1, तो इंटू 1 किया। बी के बदले क्या रखेंगे, 3, तो इसके प्लेस पे 3 कर दिया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा 2ab क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जो भी हर एक कॉलम में डिजिट थे हमारे राइट हैंड साइड से करते हैं। 9 था क्या, वंस प्लेस पे जो भी उसको अंडरलाइन कर दिया, सिर्फ एक ही, देखिए एक ही डिजिट है जो कि वंस प्लेस पे उसको अंडरलाइन कर दिया। 6 था अंडरलाइन कर दिया, 1 को इसको अंडरलाइन कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लेफ्ट साइड लिखना शुरू, 1 का 1 लिख दिया, 6 था 6 लिख दिया, ये 9 है तो 9 लिख दिया। अंदर क्या हमारा आंसर क्या है, 169। वही देखिए हमें जब कैलकुलेटर से करके देखा था तो हमारा 13 का स्कोर क्या था, 13 13 था 169, वो यहाँ पर 169 आ गया। अब सेम क्वेश्चन हम हिंदी दूसरा देखते हैं, 29 का स्क्वायर। हमने जब कैलकुलेटर से 29 स्क्वायर किया तो 841 आ रहा है। अब हम डायगोनल अब इसको कॉलम मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ए क्या है यहाँ पर 2, बी क्या है 9, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और 2ab यानी 2, ए कितना है, ए 2, और बी कितना 9, जब मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। ऐसे बी का स्क्वायर करेंगे, बी क्या है 9, तो 9 9 ज़ा 81। अब इसको रफ में देखते हैं 2ab कैसे आया हमारा। ये देखिए ए हमारा 2, बी 9, तो 2ab क्या होगा, एक 2 के बदले 2, बी की वैल्यू 2, और सॉरी 2 इंटू ए की वैल्यू 2 हो गया, और बी की वैल्यू कितनी है, बी 9 है तो 9 कर दिया, मल्टीप्लाई करिए 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। इस तरह से हमारा ये 36 आया था। अब देखिए अब मेन स्टेप समझिए इसका। ये हमारा कितना आया, 9 9 ज़ा 81 हो गया था, ये 36 वैल्यू आई थी, ये 4 आ गई थी। अब हर एक कॉलम में जो हमारा लास्ट डिजिट है, या मान लीजिए वंस प्लेस पर, उसको अंडरलाइन करिए। यहाँ पर क्या 81 था तो 1 को अंडरलाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पर 8 बच रहा है, तो जो बच रहा है इसके अलावा वंस प्लेस को अंडरलाइन करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड डिजिट है टेंस प्लेस पर है, जो बच रहा है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फिर समझ लीजिए वंस प्लेस पर राइट हैंड साइड जो बचा है 1 है, तो 1 को अंडरलाइन करिए, इसके अलावा जो भी बच रहा हो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो 36 + 8 44 हो गया। इसमें देखिए अब हम किससे मतलब रखेंगे, इस 44 से। इस 44 में जो ये 4 है वंस प्लेस पे, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। बाकी बचा है क्या, एक और 4 बचा है टेंस प्लेस पे, इसको फिर कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर दीजिए। तो 4 + 4 8 आ गया। इस 8 को भी अंडरलाइन क्यों करें 8 को, क्योंकि ये वंस प्लेस पे। अब देखो आंसर क्या आएगा, अंडरलाइन वाली वैल्यू लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखना शुरू करिए। 8 अंडरलाइन में है तो 8 लिख दिया, 4 अंडरलाइन में है 4 लिख दिया, 1 अंडरलाइन में है तो 1 लिख दिया। तो आंसर क्या है 841। सेम चीज़ जब हमने देखा कि कैलकुलेटर से करते हैं हम तो भी 20 × 21 841 होता है। ये क्लास 8 में CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड सभी में है ये मेथड, कॉलम मेथड।